Hello students, previously we completed server side state management options. Now in that remaining the things like request object, response object and transfer object. What are this object, how the object will work and what are the advantages, disadvantages, and we can say that when we have to use this particular object, that the thing are remaining. But before that, I think that before the theory things, we have to complete our practical things. Yes, for that practical thing, I have to complete the master pages. Yes, because the next site will be the ADO.NET and database connectivity site. For that, I have to complete the master pages. Now, what are the master pages? We can say master page let you make a consistent layout for your application. You can make one master page that holds the layout, look, feel and the common functionality of your whole application. And upon this master page, you can build all the other pages. We call these pages are the content page. So simply you can build your master page and then build content pages. And while creating the content pages, you bind them master page you have created before. Those two pages are merged at runtime to give you the rendered page. Okay, इतना सब कुछ मैं पढ़ के गया, उसका मीनिंग क्या होता है? Let us see that master page किसके लिए यूज होता है? Master page is used basically for to provide the consistent look and feel for the whole website. अगर आपने एक master page बना दिया है तो that one is the master. Means what? Main page है और उसका जो header footer है, left side है, right side है, yes, वो हर एक पेज के अंदर आप यूज कर सकते हो. यस, तो आपने एक कॉमन लुक एंड फील बना दिया कि हेडर यही रहने वाला है, फुटर यही रहने वाला है, लेफ्ट का मेनू यही रहने वाला है, राइट के अंदर यही आने वाला है, सारे पेजेस के अंदर ऐसा ही होना चाहिए. तो उसके लिए आप मास्टर पेज को क्रिएट कर सकते हो. मास्टर पेज के अंदर कंटेंट पेज यानी कि क्या? वेब पेज. यस, तो वेब पेज को हम क्या बोल सकते हैं? कंटेंट पेज बोल सकते हैं. और मास्टर और कंटेंट को अगर हम मर्ज करेंगे तो पर्टिकुलर वी कैन से पूरा जो हमारा वेब पेज है वो बराबर से दिखेगा. एंड वी कैन से जो हमारा रन टाइम रेंडर होगा पेज, दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मास्टर पेज एंड कंटेंट पेज. मास्टर पेजेस एंड कंटेंट प्लेस होल्डर्स. यस, the master page has extension dot master. yes, master page का extension क्या होता है? dot master होता है. and it is actually an ASPX page but with the less than %@ master page language is equal to VB. यानी कि we can say master page जो वो start होता है that will be the directive of the लेस देन %@ मास्टर. मास्टर डायरेक्टिव से यानी कि फर्स्ट लाइन आपका क्या होगा? @master. सो यहां से आपका मास्टर पेज स्टार्ट हो. यस, एवरी मास्टर पेज शुड इंक्लूड एटलीस्ट वन कंटेंट प्लेस होल्डर. मास्टर पेज के अंदर क्या होता है? कंटेंट प्लेस होल्डर होता है, यानी कि मिनिमम एक कंटेंट प्लेस होल्डर होना चाहिए मास्टर पेज के अंदर. दिस कंट्रोल इज प्लेस होल्डर फॉर द कंटेंट that will be merged at the runtime. Nothing that the content page is just an ASPX page, standard page, but you should supply the attribute master file to the page directive. Yes, content page क्या होता है? We can say content placeholder के अंदर क्या आएगा? content page आएगा. Yes, तो जो content placeholder है वो हम हर एक content page के अंदर यूज करेंगे. तो आपका जो भी कंटेंट है वो डिस्प्ले होगा पेज का कंटेंट मास्टर पेज के अंदर. ओके, मास्टर पेज का जो
हमें कॉल करना है वो ऐसे हम कॉल कर सकते हैं हमारे कंटेंट पेज के अंदर, डेट इज द लेस देन परसेंटेज पेज मास्टर पेज फाइल इज इक्वल टू मास्टर पेज का लोकेशन। यस, यहाँ पर टाइल सिंबल मास्टर पेज जिसके अंदर साइट लेआउट डॉट मास्टर करके हमारा कंटेंट होगा। कंटेंट सर्वर कंट्रोल, यस, inside the content pages you will find the one content server control added by default. Actually when you add the controls you add them to the content server control. For example ये हमारे पास ASP कंटेंट है, उसका ID, यस, ये हमारा कंटेंट पेज का, ये चीज हमें हर एक कंटेंट पेज के अंदर रखना पड़ेगा। यस, तो कंटेंट पेज के अंदर हमें ये चीज रखना है, ASP कंटेंट, उसका ID, यूनिक ID, कंटेंट प्लेस होल्डर, मास्टर पेज के अंदर जो ID हमने दिया है वो ID हम यहाँ पर कंटेंट प्लेस होल्डर का ID देंगे और रन इट इक्वल टू सर्वर करेंगे। इस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डेट कंटेंट प्लेस होल्डर ID इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट डिसाइड व्हाट कंटेंट विल बी बाउंड टू द कंटेंट प्लेस होल्डर ऑन द मास्टर पेज। कंटेंट प्लेस होल्डर क्या डिसाइड करेगा कि कौन सा कंटेंट बाउंड होगा कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर। यस, तो वो डिसाइड कौन करेगा? कंटेंट प्लेस होल्डर ID करेगा। ओके, ये हमारा मास्टर पेज है। यस, जो भी ASP कंटेंट है उसके अंदर ये सारे टैग हम प्लेस कर सकते हैं, बॉडी टैग, हेड टैग। यस, ये इसके सारे कंटेंट हमें यहाँ पर रखने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डेट नोट कंटेंट पेजेस डू नॉट इंक्लूड द कॉमन टेक्स्ट लाइक बॉडी है, हेड है, ये सब कुछ कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर नहीं आएगा, कंटेंट पेज के अंदर नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? डेट वी ऑलरेडी यूज इनसाइड द मास्टर पेज। यस, तो ये कैसे होता है सब कुछ वो मैं आपको बाद में जब प्रैक्टिकल करेंगे तब बताऊंगा। ये हमारा मास्टर पेज है, ये हमारा कंटेंट पेज है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? आउटपुट पेज होगा। यस, मास्टर पेज और कंटेंट पेज का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या होगा? आउटपुट पेज होगा। ये क्या है? कॉमन पेज है, हर एक इसके अंदर होगा। एक बार ही हमें इसको क्रिएट करना है। कंटेंट पेज यानी कि क्या? हमारा .aspx पेज। Yes, okay, so I hope that up to this thing you understand and how we can create the master pages and what are the steps include to create the master pages, वो हम next lecture में देखेंगे।